हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट द राइट एट्रियम। देखिए, जब भी आप राइट एट्रियम पढ़ रहे हैं, नाउ यू हैव द क्वेश्चन, नाउ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंटरनल फीचर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसके बेस पे है? आपके इंटीरियर पे। ठीक है, इन द लास्ट वीडियो इफ यू विल गो थ्रू दैट external features of the heart, we have already done with the external features. I will revise those features, but basically the questions are from the interior of right atrium whenever you have the questions based on in your university exams. ठीक है, so सबसे पहली चीज क्या है? What is the external features, important external features? That it forms the right border of the heart, it forms the sternocostal surface and it form the part of the base. ठीक है, so when you will see the heart के जो right border आप देखते हो, ये right border completely कौन बनाता है? right atrium. ठीक है, जब आप sternocostal surface देखते हैं, when you will see the sternocostal surface, on this sternocostal surface you have this area is formed by the right atrium. Here you will have the ventricle, this is your right ventricle and this is your left ventricle. So this is your part of right ventricle and this is the area of your right atrium. Clear? So right atrium यहाँ पे दो जगह contribute कर रहा है. First, you have seen that it is contributing in the right border, and second, in this anterior surface, the right side you will have the right atrium, that is sternocostal surface. Now when you will see the base is the posterior part of the heart, and I already explained you in the previous video that this base is purely and purely formed by the right and left atrium, and in those two chambers the 1/3 contribution comes from the right side and the major contribution comes from the left atria. Clear? Now the another important thing is that it is separated from the right ventricle by the atrioventricular groove. Clear? So it is as simple as that. When you are having the atria and ventricle, what is the line of partition is known as atrioventricular groove, and here you have the line, and this is the right side of atrioventricular groove. Now if you will see these two diagram, what you are able to appreciate here, that this is your anterior surface, or you can say this is the sternocostal surface. Now this is your right border of the heart, and in this border you can see that here you have this right atrium. Now on this surface, if you will see the surface, again you can see that right side you have the contribution from the right atrium. Clear? Now here you are able to see this is the coronary sulcus, or you can say the atrioventricular groove, which is on the right side. Now here what you are able to see, this is the base of the heart. Now again I am saying this again and again, that base or the posterior surface of the heart is purely formed by the right and left atrium, and it is lies above this coronary sulcus. Clear? And this is formed by the left atrium and by this right atrium. Clear? So the contribution of right atrium is small, and it is 1/3 of your whole posterior surface or base of the heart. Now what are the another external features of the right atrium? It is a elongated chamber. When you will see the right atrium, you will find that it is a elongated chamber, and we know that this is the chamber which receives the venous blood, because the right side of the heart receives the venous blood, and we are talking about the right atrium. So you will have the venous blood from the body, and you know that upper part of the body drained by the superior vena cava and lower part drained by the inferior vena cava. Now there is a one more important thing is known as auricle. देखिए, जब भी आप हार्ट पढ़ रहे हैं हमेशा ये वर्ड आता है ऑरिकल. ऑरिकल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑरिकल एक्चुअली एट्रियम का ही एक हिस्सा होता है. हम जब 4 चैम्बर पढ़ रहे हैं, वेंट्रिकल 2 हैं, एट्रिया 2 हैं, तो ये ऑरिकल क्या है? ऑरिकल भी हमारे एट्रियम का ही हिस्सा होता है. एंड देयर आर 2 ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. ये ऑरिकल क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज ए आउट पाउचिंग ऑफ योर एट्रिया. एट्रिया का छोटा सा प्रोलोंगेशन है, ये मस्कुलर पाउच होता है, एंड इट इज नोन एज ऑरिकल. क्लियर? सो राइट ऑरिकल इज ए अपर एंड प्रोलोंग to form the out pouching.
Then the auricle covers the root of the ascending aorta and the partly infundibulum of the right ventricle. तो जब आप इसका स्टर्नोकॉस्टल सरफेस देखते हैं हार्ट का, तो आपको एंटीरियर सरफेस पे राइट साइड से एक छोटी सी आउट पाउचिंग नजर आती है. वो आउट पाउचिंग कहां नजर आएगी? रूट ऑफ असेंडिंग aorta के पास. क्लियर? एंड ये आउट पाउचिंग अगर थोड़ा और लंबा होगा तो ये राइट वेंट्रिकल का एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ये उस एरिया को कवर करता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट external feature on the right atrium and that is known as sulcus terminalis. देखिए, जब भी आप एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट पढ़ते हैं उस पे हम ग्रूव्स देखते हैं, बॉर्डर्स देखते हैं, बट देर आर फ्यू prominent lines and one of the line is known as sulcus terminalis and it is present from the superior and inferior vena cava. So जब आप superior vena cava देखोगे and inferior vena cava देखोगे, suppose you are watching, you are seeing this heart from the lateral side, so यहाँ पे between the superior and inferior vena cava you are able to see a line and that line or the groove is known as sulcus terminalis. Now if I will pass the scissor and if I will cut this right atrium along with this line, तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? इसके अंदर मुझे मिलती है एक ridge and that ridge is known as crista terminalis. क्रिस्टा टर्मिनालिस. तो यहां पे जो सवाल आया वो ये आया कि सल्कस टर्मिनालिस एक्सटेंड्स फ्रॉम, आंसर इज सुपीरियर टू इंफीरियर वेना केवा. इट इज ए फीचर ऑफ आउटर सरफेस और इनर. It is the feature of external part of the right atrium. Then the next question is what lies deep to the sulcus terminalis. Sulcus terminalis के नीचे क्या होगा? Crista terminalis. Clear? Then the upper part of sulcus terminalis contains assay node. Now this is again the very important question for your multiple choice exam. So यहाँ पे इस upper part पे क्या होगा? This is your site of assay node. तो यहाँ पे एक जो सवाल है वो ये हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि जब भी हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो assay node किस चैम्बर में मिलता है? आंसर इज assay node. किस चैम्बर में मिलता है? आंसर इज right atrium. Now you have the right part of the AV groove which contains the right coronary artery and small cardiac vein. Clear? So when you will see the external surface of the heart, we are able to see the groove which is between the atria and ventricle or it is also known as coronary sulcus. So उसका जो right part है उसमें क्या होता है? Answer is right coronary artery and small cardiac vein. Now what are the tributaries? Tributaries का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई कंटेनर देख रहे हो, नाउ सपोज ये एक चैम्बर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारी लाइंस हैं जो पानी लेके आ रही हैं, कोई फ्लूइड लेके आ रही हैं, और एक चैनल है या एक से ज्यादा चैनल्स हैं जो इसमें से बाहर लेके जा रहे हैं फ्लूइड को. तो जो अंदर लेके आए दे आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज और जो बाहर लेके गए दे आर नोन एज ड्रेनिंग चैनल. दे आर नोन एज ड्रेनिंग चैनल. क्लियर? सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जब भी हम वेन्स की बात कर रहे हैं तो वेन्स क्या कर रही हैं? दे आर कलेक्टिंग द होल बॉडी ब्लड एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट. क्लियर? एंड राइट चैम्बर में बहुत सारा वीनस ब्लड आ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट. सो इफ सपोज दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दीज आर द वेन्स, देन दे ऑल आर टेकिंग द ब्लड इनटू द हार्ट. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज. ठीक है? अब ब्लड कहां से आता है? यू नो दैट there are two major vessels which are taking blood to the heart and they are known as superior inferior vena cava. लेकिन उसके अलावा और ब्लड कहां से आएगा? देखिए, we have the heart and heart की भी अपनी ब्लड सप्लाई है. You know the heart is supplied by the coronary arteries. तो अगर इसमें ब्लड जा रहा है तो इससे venous blood भी निकलेगा and that venous blood is again come out from the heart with the help of these veins और ये वेन्स भी वीनस ब्लड कहां ले जाएंगी? अल्टीमेटली राइट एट्रियम में. यानी हार्ट का वीनस ब्लड हार्ट के ही चैम्बर में चला गया एंड दैट इज इन द राइट एट्रियम. सो इस वीनस ब्लड को ले जाने के लिए यू हैव द कोरोनरी साइनस. नाउ दिस कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वीनस चैनल ऑफ हार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट you have the anterior cardiac vein which present on the anterior surface. You have very small veins which are known as vena cordis minimi or Thebetian veins, and
राइट मार्जिनल वेन्स। तो ये जितनी भी वेन्स हैं चारों, ये वेन्स ब्लड कहां से ला रही हैं? हार्ट से। और ये दोनों वेन्स ब्लड कहां से ला रही हैं? फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? और ये सारा ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में, बिकॉज इट इज द वीनस चैम्बर ऑफ योर हार्ट। देन what are the internal feature? Now this is something which you have to understand. ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है इस राइट एट्रियम से। सो नाउ व्हेन यू विल सी, जब हम राइट एट्रियम का इंटीरियर पढ़ेंगे तो हमने क्या किया? राइट एट्रियम को ओपन किया। ओपन कहां से किया? वी आर एक्चुअली कटिंग द राइट एट्रियम अलोंग इट्स राइट बॉर्डर। उस राइट बॉर्डर पे हम सुपीरियर से इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो सल्कस टर्मिनलिस है, वहां पे वी आर पुटिंग ए इंसिजन। जब आपने इंसिजन पुट किया तो हमें 3 पार्ट हैं इंटीरियर में जो दिखते हैं। एक पार्ट दैट इज नोन एज स्मूथ पोर्शन ऑफ योर राइट एट्रियम, दूसरा रफ पार्ट, एंड तीसरा इंटर एट्रियल सेप्टा। देखिए इंटर एट्रियल सेप्टा तो क्या हो गया? इट इज द सेप्टा विच इज सेपरेटिंग योर राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। हम बात करेंगे इन दोनों एरियाज की। ये जो दोनों एरियाज हैं, ये दोनों एरियाज कहां मिलेंगे आपको? राइट एट्रियम में। नाउ सपोज दिस इज योर चैम्बर ऑफ राइट एट्रियम, और ये यहां से हमने खोल दिया, दैट इज द लाइन ऑफ योर सल्कस टर्मिनलिस। नाउ ये जो सल्कस टर्मिनलिस है, इसके अंदर क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, यू हैव ए थिक रिज and that ridge is known as crista terminalis। रिज का नाम क्या हुआ? क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो ये रिज है क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्लियर? अब इस क्रिस्टा टर्मिनालिस के एक साइड होता है आपका स्मूथ पार्ट, और एक साइड क्या होता है? रफ पार्ट होता है। सो यहां पे पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the line of demarcation between the smooth and rough part? तो यहां पे पार्टीशन क्या है? आंसर इज क्रिस्टा टर्मिनालिस। सो क्रिस्टा टर्मिनालिस इज द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क विच इज डिवाइडिंग योर स्मूथ एंड रफ पार्ट। दूसरी चीज क्या है कि अभी एक और आपको यहां पे नाम नजर आएगा, दैट इज नोन एज साइनस वेनेरम। ये साइनस वेनेरम नाम किसको दिया गया? स्मूथ पार्ट को, साइनस वेनेरम। और जो रफ पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया? पैक्टिनेट पार्ट। उसको क्या नाम दिया गया? पैक्टिनेट पार्ट। अब देखिए यहां पे आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी हम इनफ्लो की बात करेंगे, यानी जो अभी हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, वो इन दोनों में से किस पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में ओपन होती है? आंसर इज स्मूथ पार्ट में। यानी जो सुपीरियर वेना केवा है, यानी जो इंफीरियर वेना केवा है, कोरोनरी साइनस है, या कोई भी वेन है जो कि वीनस ब्लड लेके आ रही है, वो वीनस ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम के कौन से पार्ट में आएगा? आंसर इज स्मूथ पार्ट। रफ पार्ट के थ्रू यू हैव द आउटफ्लो, यानी आपका जो ब्लड है वो यहां से निकल के कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है वो कौन से पार्ट ऑफ एट्रियम में ओपन होती है? आंसर इज योर स्मूथ पार्ट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं साइनस वेनेरम। और ये पार्ट कहां होता है? इट इज पोस्टीरियरली। नाउ दिस पार्ट इज एंटीरियरली। क्लियर? दिस पार्ट इज एंटीरियरली। तो बेसिकली यहां पे आपको एक जो सवाल है वो हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी हम इंटीरियर फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम लिख रहे हैं, हमें क्रिस्टा टर्मिनालिस को ध्यान में रखना है। क्रिस्टा टर्मिनालिस के जो पीछे वाला हिस्सा है वो स्मूथ होता है, उसको हम इनफ्लो एरिया बोलते हैं। इनफ्लो का मतलब यहां पे सारी वेन्स आके खुलने वाली हैं, चाहे वो कोई भी वेन हो। और जो इसके आगे का एरिया होता है उसको हम रफ पार्ट बोलते हैं, एंड दिस इज द आउटफ्लो सेक्शन ऑफ योर राइट एट्रियम। यानी इस एरिया से ब्लड होता हुआ कहां चला गया? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ आपके राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है? सो दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, इन दोनों पार्ट्स के जो स्पेसिफिक नाम है वो आपको याद रखने हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है साइनस वेनेरम, और ये जो रफ पार्ट है ये कहलाता है पैक्टिनेट पार्ट ऑफ राइट एट्रिया। नाउ दिस इज व्हाट यू आर एबल टू अप्रिशिएट इन द डिसेक्शन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? दिस इज द ओपन चैम्बर ऑफ योर राइट एट्रिया। हमने इस राइट एट्रियम को खोल दिया। खोलने के बाद सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये रिज। ये रिज क्या है? दिस रिज इज योर
क्रिस्टा टर्मिनालिस। व्हाट इज दिस रिज? क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्लियर? अब क्रिस्टा टर्मिनालिस के आगे क्या होगा? क्रिस्टा टर्मिनालिस के आगे मतलब वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। सो दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल वेयर यू कैन सी दिस व्हाइट कलर कस्प। सो इसके आगे मतलब अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इस बॉर्डर से लेके इस कस्प तक के बीच में ये वाला एरिया आया। यहां पे आपको ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, मल्टीपल रिजेस दिख रही हैं। दिस इज योर रफ पार्ट ऑफ योर राइट एट्रियम एंड ये जो रफ पार्ट है इट इज एंटीरियर टू द क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड इस रफ पार्ट को हमने क्या बोला था? पैक्टिनेट पार्ट। अब ये जो रफनेस है, ये रफनेस होती है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकली कॉल्ड स्ट्रक्चर मस्क्यूली पैक्टिनिटी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मस्क्यूली पैक्टिनिटी ये वाला पार्ट क्या कहलाया? पैक्टिनेट पार्ट। और ये मस्क्यूली पैक्टिनिटी इसको क्या दे रही है? कॉम्ब लाइक अपीयरेंस दे रही है। ठीक है, इसके पीछे ये जो एरिया बचा, इस एरिया में आप क्या देख रहे हो? सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है, इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है, कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एंटीरियर कार्डियक वेन्स ओपन होंगी। तो ये वाला एरिया क्या है? ये स्मूथ पार्ट है जो इस क्रिस्टा के पीछे है। क्या है? इसके पीछे है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे ये आप देख रहे हो सेप्टम। इस सेप्टम में आप देख रहे हो एक डिप्रेशन दैट इज नोन एज फोसा ओवलिस। क्लियर? तो जब आप इंटीरियर ऑफ हार्ट पढ़ोगे तो इंटीरियर ऑफ हार्ट में राइट चैम्बर ऑफ योर एट्रिया is showing the three specific features जो हमेशा आपको बोलने हैं। पहला क्रिस्टा टर्मिनालिस। Now this crista terminalis divides the rough part and smooth part. The roughness is because of this musculi pactinity. Then the smooth part is known as sinus venerum, which is the inflow area, and the septum is showing the fossa ovalis. Clear? Now we'll see one by one the specific features. So first is the sinus venerum, which is the posterior part of the right atrium. It is derived from the right horn of sinus venosus. This is the question. It is so many times you will have in the multiple choice question embryology that what is the origin of sinus venerum. तो जब भी आप sinus venerum की बात करोगे, ये वर्ड जो है sinus venerum, ये आया कहां से? ये इसके एम्ब्रियोलॉजी से आया है। बिकॉज ये साइनस वीनोसस से अराइज होता है, इसीलिए हम इसको साइनस वेनेरम कहते हैं। ठीक है, साइनस वीनोसस के दो हॉर्न होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। हम यहां बात कर रहे हैं राइट हॉर्न की। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? मतलब क्या हुआ कि राइट चैम्बर ऑफ योर हार्ट में कौन कौन सी वेन्स आके ओपन हो रही हैं। तो राइट एट्रियम में अभी मैंने देखा सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है, इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है, कोरोनरी साइनस ओपन होता है, वीनी कॉर्डिस मिनिमी यानी छोटी छोटी बहुत सारी मल्टीपल एंटीरियर कार्डियक वेन्स ओपन होती हैं। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फिल इन द ब्लैंक्स। कि एक चीज है यूस्टेचियन वॉल्व और एक है थिबेशियन वॉल्व। देखिए ये दोनों वॉल्व इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में वर्किंग होते हैं, लेकिन एडल्ट लाइफ में दे बिकम रूडिमेंट्री एंड नॉन फंक्शनिंग। यानी आपके और मेरे हार्ट में ये वॉल्व तो मिलेंगे लेकिन इनका कोई रोल नहीं है, ये नॉन फंक्शनिंग है, रूडिमेंट्री है। ठीक है, सो इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पे आपको एक यूस्टेशियन वॉल्व मिलता है, और जो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है वहां पे भी एक रूडिमेंट्री वॉल्व मिलता है, दैट इज नोन एज थिबेशियन वेन। ठीक है, इंट्राएम्ब्रियोनिक लाइफ में ये यूस्टेशियन वॉल्व करता क्या है? अगर हम इंट्राएम्ब्रियोनिक हार्ट को देखेंगे तो इंट्राएम्ब्रियोनिक हार्ट जो होता है उसमें ये सेप्टम कंप्लीट नहीं होगा। इस सेप्टम में होता है डिफेक्ट दैट इज नोन एज योर एट्रियल डिफेक्ट। क्लियर? सो जो भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो एम्ब्रियो के अंदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कहां जाएगा? आपके राइट चैम्बर में जाएगा। तो राइट से कहां जा रहा है? ये लेफ्ट चैम्बर में जा रहा है। तो ये जो आपका फ्लो है, ये फ्लो गार्ड किया जाता है इस यूस्टेशियन वॉल्व से, जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में फंक्शनिंग वॉल्व है। लेकिन आफ्टर द बर्थ बिकॉज ये क्लोज हो गया, क्लियर, और इसके क्लोज होने के कारण इसकी फंक्शनिंग खत्म हो गई एंड स्टिल इट रिमेन्स एज ए रूडिमेंट्री पार्ट। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज इंटरवीनस ट्यूबरकल। नाउ ये जो इंटरवीनस ट्यूबरकल होता है, इट इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द सुपीरियर वेना केवा, बट
It is very rare finding in the human hearts, and this is just for the knowledge of your exam purpose कि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, अगर आप राइट एट्रियम की बात कर रहे हो तो किस चैनल के से रिलेटेड है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, एसवीसी, आईवीसी, कोरोनरी साइनस एंड वीना कॉर्डिस मिनिमी। द आंसर इज एसवीसी। क्लियर? So this is what about the sinus venerum. Now here again you can appreciate this. This is the opening of superior vena cava. This is the opening of inferior vena cava. This is the opening of coronary sinus. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाया? This part is your sinus venerum, or you can say smooth part of your right atria. Clear? Now what is the rough part? Now the rough part is known as atria proper. Now ये atria proper क्यों कहलाया? Because this word again comes from embryology. Now this right atria का जो rough part है, ये डेवलप कहां से हुआ? राइट हाफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से। बिकॉज ये एट्रियल चैम्बर से डेवलप हुआ, इसलिए इसको एट्रिया प्रॉपर बोला। जबकि जो हमारा स्मूथ पार्ट था वो साइनस वीनोसस के हॉर्न से डेवलप हुआ, इसलिए इसको हमने एट्रिया प्रॉपर बोला, उसको हमने साइनस वेनेरम बोला। ठीक है, ये पार्ट क्या है? पैक्टिनेट पार्ट कहलाया। पैक्टिनेट वर्ड क्यों आया? बिकॉज ऑफ द मस्कुलर पैक्टिनिटी। ठीक है, सो ये वर्ड तो आया मस्कुलर पैक्टिनिटी से और ये वर्ड आया इसकी एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, सो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ योर राइट एट्रियम विच इज रफ इन नेचर एंड इट हैव ए सीरीज ऑफ योर मस्कुलर रिजेस which are known as muscular pactinity. This is again the multiple choice question for your exam. Then you will have the another important thing is कि muscular pactinity arise कहां से होते हैं, start कहां से होते हैं? So I told you that they arises from the crista terminalis and they runs towards the AV canal. They runs downward forward towards the AV canal or the AV orifice and into the auricle also. ठीक है, so I told you that auricle is a part of your atrium and it is muscular outpouching which is rough inside. So ये rough क्यों है? Auricle भी इन्हीं muscular pactinity की वजह से rough होती है। Now this muscular pactinity give a comb like appearance. Now sometimes you have an indirect question that name the structure of your right atrium which gives comb like or teeth of comb like appearance. So you have the options. The answer is muscular pactinity. Clear? So we have seen the muscular pactinity in the interior of your right atrium. Now we'll come to the interatrial septum. देखिए इंटरएट्रियल सेप्टम को जब भी हम पढ़ते हैं हमेशा आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इंटरएट्रियल सेप्टम दो सेप्टम से मिलकर बना है। वन इज नोन एज सेप्टम प्राइमम, अनदर इज नोन एज सेप्टम सेकेंडम। सो पहली लाइन ये है कि इंटरएट्रियल सेप्टम एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं है, इसके डेवलपमेंट में हमें दो नाम हमेशा याद रखने होते हैं, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। अब जब आप एडल्ट हार्ट देखते हो, व्हेन यू विल डू द डिसेक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर इंटरएट्रियल सेप्टम पे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क नजर आते हैं। वन इज फोसा ओवेलिस, another is annulus fossa ovalis, or it is also very commonly known as limbus fossa ovalis. Fossa ovalis क्या represent करता है? This is most favorite question of examiner as well as you have this question very commonly in your fill in the blanks कि fossa ovalis represent, answer is septum primum. Clear? Or vice versa, what is the adult derivative in the heart from the septum primum? Answer is fossa ovalis. Then you will have annulus fossa ovalis. Now this annulus fossa ovalis is actually the lower free margin of septum secundum. देखिए जब आप सेप्टम की बात कर रहे हैं तो इस सेप्टम पे यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? एक डिप्रेशन मिल रहा है। ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन क्या कहलाया? फोसा ओवेलिस। इस डिप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? ये डिप्रेशन एरिया क्या है? सेप्टम प्राइमम। और इसके ऊपर ये जो एरिया है, इस एरिया के का जो लोअर मार्जिन है, ये जो एज है, इस पार्ट की जो ये एज है, अगर आप इसको साइड से देखोगे, सो दिस इज योर फोसा ओवेलिस, उसके ऊपर आपको एक थिक मार्जिन नजर आती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मार्जिन।
नाउ दिस मार्जिन इज नोन एज लिम्बस और एन्युलस फोसा ओवेलिस। सो ये फोसा ओवेलिस तो किससे डेवलप हुआ, सेप्टम प्राइमम से, लेकिन जो इसकी थिक बॉर्डर है, ये जो मार्जिन है, दिस मार्जिन डेवलप्स फ्रॉम द लोअर फ्री एज ऑफ सेप्टम सेकेंडम। नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन, ट्राइंगल ऑफ कॉच। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज दैट इसकी बाउंड्रीज क्या है और ट्राइंगल ऑफ कॉच के अंदर होता क्या है। सो द पहला सवाल, इट लॉजेस एवी नोड। ठीक है, अभी हमने ऐसे नोड देखा था, ऐसे नोड कहां था, इट इज नियर द सुपीरियर वेना केवा। अब हम आ गए एवी नोड पे। एवी नोड कहां है, इट इज अगेन इन वी आर रीडिंग द राइट एट्रियम, बट कहां पे, ट्राइंगल ऑफ कॉच। तो इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है वो एवी नोड की वजह से है। इसकी बाउंड्रीज क्या है, सो देयर आर 3 बाउंड्रीज, फ्रंट बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड अबव बाउंड्री। इन फ्रंट क्या होता है, इन फ्रंट यू हैव द ट्राइकस्पिड वॉल्व का लीफलेट। व्हाट इज द एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। What is the behind? Behind you have the opening of coronary sinus and above you have a tendon of Todero. Tendon of Todero which is a subendocardial structure. ठीक है, सो जब भी आप इंटरएट्रियल सेप्टम पढ़ रहे हो, आपको ये 3 चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी है, फोसा ओवेलिस, एन्युलस और लिम्बस फोसा ओवेलिस एंड ट्राइंगल ऑफ कॉच। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी फर्स्ट दिस इज योर इंटरएट्रियल सेप्टम। नाउ इस इंटरएट्रियल सेप्टम में ये जो फोसा है, ये फोसा क्या शो कर रहा है, दिस फोसा इज शोइंग योर, ये जो फोसा है, ये फोसा क्या है, दिस फोसा इज योर फोसा ओवेलिस, और ये जो फोसा ओवेलिस है ये क्या है, सेप्टम प्राइमम। अगर आप इसकी मार्जिन चेक करेंगे, व्हेन यू विल सी द मार्जिन्स, ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन क्या है, दिस मार्जिन इज नोन एज लिम्बस फोसा ओवेलिस और इट इज नोन एज annulus fossa ovalis। ये क्या है, it is a lower free margin of your septum secundum। now what else you are able to appreciate here, this triangle। now this triangle is known as triangle of Koch। this is the triangle of Koch। इस triangle of Koch की एक बाउंड्री में आप क्या देख रहे हो, ये लीफलेट। ये लीफलेट मतलब जो आपका यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, उस ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 लीफ होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राई 1 2 3। सो ये वाली जो लीफलेट है जो आप यहां देख रहे हैं, सो एक बाउंड्री बना रही है लीफलेट। दूसरी बाउंड्री कौन बना रहा है, व्हेन यू विल सी द अनदर बाउंड्री, दिस इज योर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। सो वन ओपनिंग इज हियर, सो कोरोनरी साइनस। अनदर बाउंड्री कौन बना रहा है, व्हेन यू विल सी द नेक्स्ट बाउंड्री, नाउ हियर यू विल हैव इन दिस पार्ट वी हैव द टेंडन ऑफ टोडेरो which is a subendocardial structure। so there are 3 structure, tricuspid valve, coronary sinus and tendon of Todero। clear? so this is the location of your triangle of Koch। और इस triangle के अंदर क्या होगा, you will have AV node। ठीक है, so this is what is the importance of this interatrial septum। so when you will see the summary of the development, which is the most common question, साइनस वेनेरम, ये क्या था हमारा स्मूथ पार्ट, ये कहां से डेवलप हुआ, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस से, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, साइनस वेनेरम। एट्रिया प्रॉपर, ये किससे आया, राइट हाफ ऑफ योर प्रिमिटिव एट्रिया से, इसीलिए इसको हमने नाम दिया एट्रिया प्रॉपर, विच इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियल चैम्बर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पैक्टिनेट पार्ट। नाउ क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड वॉल्व ऑफ इंफीरियर एंड वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, जब आप इनकी बात करोगे तो ये दोनों किससे डेवलप हो रहे हैं, वीनस वाल्व से। किससे, वीनस वाल्व से। कौन सा वीनस वाल्व है, राइट वीनस वाल्व, बट एरिया अलग अलग है। दिस डेवलप्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द राइट वीनस वाल्व एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस के जो वाल्व हैं, दे डेवलप्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ दिस वीनस वाल्व, बट दीज वाल्व्स आर rudimentary and non-functioning in the adult heart। Then you will have the floor of fossa ovalis। I told you the floor of fossa ovalis represent the septum primum and the limbus fossa ovalis represent the lower margin of septum secundum। clear? so whenever you are reading your right atria, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो याद रखने हैं। एक तो राइट एट्रियम जो है कौन कौन सी सरफेसेस, बॉर्डर्स ऑफ हार्ट बनाता है, व्हाट इज सल्कस टर्मिनलिस, इंटीरियर ऑफ द हार्ट एंड
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस राइट एट्रियम। और इंटीरियर में आपके पास तीन चीजें हैं, स्मूथ पार्ट दैट इज द साइनस वेनरम विच इज द इनफ्लो एरिया, outflow part that is the rough part is known as pectinate part, and the third thing interatrial septum. And what is the line of demarcation between the smooth and rough part is known as crista terminalis. So this is all about this lecture. Thank you.